So what do they say? That initially the virus is not showing any symptom, but afterwards some of the opportunistic infections start to develop in the body of a person, and they may have the type of skin disease जिसका उन्होंने क्या कैंसर स्किन कैंसर का नाम दिया, and this is due to the fungus. These are caused by a fungi, oral thrush, caused by Candida albicans, a rare form of pneumonia, caused by pneumocystis. Right? During the early years of the AIDS epidemic, people in developed countries died within 12 hours. Right? So वो शुरू में initially when it started to spread, people started to die very quickly, और उनको जब देखा गया और चेक किया गया तो they were diagnosed with the HIV, right? So उनसे ये पता चला कि they were the patient of HIV and they were having this rare type of pneumonia due to which they died in the 12 hours, right? And at the later stages of the disease, they can have a type of cancer which is known as skin cancer, Kaposi sarcoma, caused by herpes type of virus. Herpes is a virus type associated with AIDS. Kaposi sarcoma or the cancers of internal organ are most likely cause the death of the people. And there are also degenerative brain diseases like dementia. This can also cause dementia in certain people, right? Is that clear? So what are the initial infections of this disease? And what are the later herpes. infections? जी बेटा. मिस इनिशियल तो फ्लू था ना? हाँ, वो क्या चीज थी? फ्लू. नहीं, इन्फेक्शन ऑपर्चुनिस्टिकली जो डेवलप होते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है उस कंडीशन की, वो क्या है? फंगल ओरल फंजाई की वजह से ओरल थ्रश हो जाता है, और एक रेयर फॉर्म का नमूनिया है जिसको हम न्यूमोनिसिस्टिस कहते हैं, और ये वो रेयर फॉर्म ऑफ नमूनिया है जिसकी वजह से लोग जो होते हैं विद इन 12 आवर्स खत्म हो जाते हैं. लेकिन कह रहा है जब ये फर्दर आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स होने लगता है इम्यून सिस्टम, तो दे कैन ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट अ टाइप ऑफ स्किन कैंसर, कापोसी सार्कोमा. फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि बहुत ज्यादा लेटर स्टेजेस में आते हैं तो दे कैन ऑल्सो हैव द ब्रेन डिजेनरेटिव डिजीजेस जस्ट लाइक डिमेंशिया. तो डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट सिम्टम्स शो हो रहा है उसकी बॉडी में. एम आई क्लियर? About at the यस मिस. same time, what is happening? AIDS was first reported on the west coast of the US and Europe. Doctors in Central Africa reported seeing people with similar opportunistic infections. Now it is widespread through sub-Saharan Africa, Uganda, South Africa, and all these. It is a serious public health problem. Therefore, because HIV infection makes people more vulnerable to the existing diseases and such as malnutrition. अब अफ्रीकन कंट्रीज में तो है ही malnutrition का प्रॉब्लम. दे आर वेरी पुअर, तो दे कैन ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट एनी इन्फेक्शन. यही बात मैंने भी आपको कही थी ना कि टू मेक इम्यूनिटी वेरी स्ट्रांग व्हाट शुड दे नीड? दे आर हैविंग द नीड ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन की नीड उनको क्यों है? बिकॉज दे वांट टू मेक मोर एंटीबॉडीज. TB, malaria, AIDS is having an adverse effect on the economic development of countries in the region. और वो इकोनॉमिकली उन कंट्रीज को कैसे इफेक्ट कर रही है वो? Because most of their money is drained in purchasing those drugs. They are using most of their money in purchasing those drugs for the cure of the disease, right? तो इकोनॉमिकली तो वो नीचे जाएंगी ना, फिर वैसे ही तो वो पुअर है. और प्लस जब उनको ऐसी डिजीजेस होंगी तो दे नीड टू हैव सम मेडिसिन, एंड दीज मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, राइट? World Bank estimated that AIDS has reversed 10 to 15 years of economic growth for some African states. यानी 10 to 15 years पीछे चले गए वो अपनी ग्रोथ की वजह से, अपनी ग्रोथ में इकोनॉमिकली. क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा स्पेंड किया अपनी डिजीज के ऊपर. ट्रीटिंग HIV, there is no cure for AIDS and no vaccine for it. However, there has been much success in recent years treating people with drugs so that they can live with HIV
HIV है but they can survive. Drug therapy can slow down the onset of AIDS quite dramatically so that many HIV positive people may now have a normal life expectancy. बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पॉजिटिव थे बट व्हेन दे स्टार्टेड टू यूज मेडिसिन डिले हो गई, उनका लाइफ स्पैन बढ़ गया. However, the drugs are expensive and have a variety of side effects ranging from mild to temporary rashes, headache, diarrhea, severe nerve damage हो सकता है, severe में abnormal fat distribution हो सकती है. So they are saying these are the side effects of this disease, right? Read this first parameter. ये बेटा पढ़ लिया? Did you read? जी मिस पढ़ लिया. क्या बताया? मिस उसमें कुछ ड्रग्स हैं जो स्लो डाउन कर देती हैं लेकिन फुली क्योर नहीं कर पाती. सही है. और उन्होंने कहा कि उन्होंने काफी हद तक उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की है और कुछ जगहों पे तो वो हाफ तक ले आए हैं उसकी रेंज को, उसको स्लो डाउन करते करते उसको पीक को. डिड यू रीड दैट? बिकॉज वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है उसके ऊपर जाके जब बाइंड होता है वो ड्रग, तो उसको फंक्शन नहीं परफॉर्म करने देती है और उस वजह से एड्स जो होता है वो स्प्रेड नहीं हो पाता और काफी हद तक इम्यूनिटी बंदे की स्ट्रांग रहती है. डिड यू रीड इट? यस मिस. प्रिवेंटिंग HIV और एड्स. स्प्रेड ऑफ HIV इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल. वायरस जो है वो अपने लेटेंट मोड में होता है बहुत ज्यादा. लेटेंट मीन्स ये बहुत ज्यादा डोरमेंट मोड में चला गया और ये सिम्टमलेस इसीलिए कैरियर कहलाते हैं. वायरस चेंजेस इट्स सरफेस प्रोटीन which makes it hard for the body's immune system to recognize it. वो कह रहे हैं जब ये जा रहा है बॉडी के अंदर तो ये चुप होके बैठ गया, खामोश होके. क्यों बैठ गया? बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको क्यों रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है? बिकॉज इट चेंजेस इट्स सरफेस प्रोटीन और वो देखने में ऐसा लगता है बॉडी का सेल ही है. दैट इज वाई इम्यून सिस्टम इज नॉट गोइंग टू रिकॉग्नाइज इट एंड इट मेक्स द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज अगर वो कोई ऐसी वैक्सीन बनाएंगे जो बॉडी के सेल से मैच हो रही है तो ऑब्वियसली वो किस चीज को डैमेज करने लगेगी? वो बॉडी के सेल को भी डैमेज करने लगेगी. सही है. एंड ट्रीटिंग प्रेग्नेंट वुमेन विद द HIV does not infect their fetus. सही है. This has led a considerable decrease in the number of children born with HIV. अब वो कह रहा है there are different measures taken by the different countries in the spread of HIV to control it. People can be educated about the spread of infection and encouraged to change their behavior. तो उनको पता चले, लोगों को अवेयरनेस दी गई कि what can be the causes or for this and what should they use and what should they not use and what should be avoided to prevent this themselves from this disease, right? So they have discussed all these things here. The use of condom, the sexual production and all these things. Contact tracing is an important part of controlling HIV. वो कह रहे हैं contact tracing के meaning क्या होते हैं? If they find any patient with the HIV, they go and see
एंड आस्क देम के वो किन किन लोगों से उसके कांटेक्ट रहे हैं, क्या ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन कभी इसने लाइफ में करवाई थी, कभी हो सकता है किसी के पास गया हो प्रोस्टिट्यूट वगैरह के पास, कभी कहीं और से इसने कोई ऐसा कोई रेजर या कोई ऐसी चीज यूज कर ली है, इन्फेक्टेड जो ब्लड उसकी बॉडी में चला गया किसी भी तरीके से, नॉट नेसेसरी कि उसकी सेक्सुअल रिलेशन या किसी से, समटाइम इट हैपेंस कि वो किसी और सोर्स के जरिए उसकी बॉडी में पहुंच गए। तो उससे क्या होता है, उससे उनको कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के जरिए ये पता चल जाता है कि ये डिजीज कहाँ से स्टार्ट होनी शुरू हुई है, और उसको वो फिर प्रिवेंट करने के लिए डिफरेंट वो मेथड यूज कर सकते हैं। ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम द ब्लड डोनर इज स्क्रीन फॉर HIV, हीट ट्रीटेड टू किल एनी वायरसेस, और उसको हीट ट्रीट करते हैं ताकि उसमें जो भी वायरस वगैरह है उनको खत्म कर दिया जाए। तो पीपल हु थिंक दे मे हैव बीन एक्सपोज टू द वायरस आर स्ट्रांगली डिस्करेज फ्रॉम डोनेटिंग ब्लड। तो उससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने डोनेट करना छोड़ दिया ब्लड, ये सोच के कि हो सकता है हमें ये मसला हो जाए। Anyone concerned about becoming infected by blood transfusion during an operation may donate their own blood before the operation to be used instead of the blood from the ब्लड बैंक। तो ऐसा होता है वो फैमिली में से या कहीं से भी वो ब्लड अरेंज कर लेते हैं। HIV टेस्टिंग इज प्रोमोटेड मोस्ट स्ट्रांगली इन द पीपल द हाई रिस्क ग्रुप, मेल होमोसेक्सुअल जो थे, प्रोस्टिट्यूट थे, इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स एंड सेक्सुअल पार्टनर। तो उनको ये बहुत ज्यादा अवेयरनेस दी गई इस बारे में। फिर कह रहे हैं बोथ वायरल पार्टिकल एंड इन्फेक्टेड लिम्फोसाइट आर फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क। तो मदर टू चाइल्ड भी ट्रांसमिशन हो सकती है, उसकी रिड्यूस हुई। और HIV positive women and their babies with drugs. However, HIV positive women in high income countries are advised to breastfeed their babies, not to breastfeed their babies, क्योंकि ये HIV का जो वायरस है ये ब्रेस्ट मिल्क के जरिए भी ट्रांसफर हो सकता है। सही है ना। और जो स्पेशली दे हैव अ सिक्योर सप्लाई ऑफ ड्रग्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। उन्होंने कहा कि HIV पॉजिटिव जो पुअर कंट्रीज में थे उनको कहा गया कि भाई जाहिर बात है वो अफोर्ड नहीं कर सकते पाउडर मिल्क, तो उनको ये कहा गया कि भाई बॉटल मिल्क के बजाय अगर फीड भी कराना चाहते हैं तो उनको अपना वो कोर्स जो है वो उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली लेना पड़ेगा। ठीक है। एज द प्रोटेक्शन दिस गिव्स बेबीज अगेंस्ट देयर डिजीजेज एंड द लैक ऑफ क्लीन वाटर टू मेक अ फॉर्मूला मिल्क में आउटवेट द रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग HIV। और उससे क्या होता है, अगर वो उनके पास क्लीन वाटर भी अवेलेबल नहीं है तो रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है चीजों का। सही है। अगर वो एड्स नहीं होगा तो कोई और डिजीज हो जाएगी उनके पास। सही। बेटा यहाँ पे टॉपिक एंड कर रहे हैं, आज की क्लास भी यहीं एंड करते हैं। सही है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पीरियड में कल मुझे क्लास सेंटर पे रखनी है या ऑनलाइन रखनी है, आई विल टेल यू। ओके। अल्लाह हाफिज़। ओके।